growth story will be incomplete without the full participation of women entrepreneurs. As India hurtles towards a developed nation status by 2047, we would need to enable more and more women to lead, grow, and scale. And in that, MSMEs will be critical. To discuss how we can bridge the gap between women, wealth, and work, I'm joined by someone who has been a trailblazer herself, Ms. Naina Lal Kidwai, an ardent advocate for gender inclusion and entrepreneurship in leadership positions. How can we have more and more women pushed into the workforce? So I think this is an important aspect, employment. And employment of men and women, job creation, and the MSMEs become critical in terms of what manufacturing means for employment. What we do need is the supply chain that will go into these large companies, which will generate more employment, and the MSME sectors stand alone as they are in terms of employment generation. Now, this will vary. So you get the sort of SME or even MSME sectors, for example, apparel. It took just 5 years for the social structure of the village to change. These women began to insist that the men move to their village because they didn't want to give up their jobs. Then you come to the MSME sectors, which, if they are higher tech sectors, we need to basically have more women joining sectors which stem from STEM, that we need to ensure that they see the job employment opportunities therein as well. We'll buy $20 billion of product from a single country. Can we ensure that they see India as a supplier to the world? Much easier than each individual company trying to sell directly, but rather to rely on big buyers and be part of their supply chains as they supply to the rest of the world. And do we favor large aggregators of this order? If there's someone who can play this role, or e-commerce itself as an enabler, then we have that potential to become a big exporter to the rest of the world. It was a pleasure speaking to you, ma'am, and thank you for taking the time out. स्वास्थ्य की जो सर्विसेज होती हैं और जो शिक्षा होती है, MSMEs किस तरह से एक्सेसिबल सर्विसेज दे रहे हैं और कितना फ़र्क आपने कुछ सालों में देखा है? MSMEs के लिए और हेल्थ केयर के लिए मैं कहूँगा आफ्टर कोविड लगभग सब कुछ मूल रूप से बदल गया है, क्योंकि जो MSMEs और जो हेल्थ केयर की सुविधाएं होती हैं वो अगर अमूमन आप माने तो किसी की तकलीफ़ उनकी सर्विस होती है। सबसे बड़ी आपदा अगर हेल्थ केयर की आप देखें तो वो कोविड थी पिछले 100 सालों में। बिल्कुल। सो जितनी बड़ी थी उतना बड़ा अवसर भी उसने क्रिएट किया होगा MSMEs के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए। हम कितना उस अवसर का इस्तेमाल कर पाए हैं अपनी हेल्थ केयर की फ्रेमवर्क को MSME लेवल पे सुदृढ़ करने के लिए और ताकतवर करने के लिए, मुझे लगता है ये उस बदलाव का करीब करीब तीसरा साल है, 2021, 22, 23, 24। और पिछले 3 सालों में आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कोविड के समय जो काम किया, जिसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें डायरेक्टर जनरल का टाइटल दिया गया, प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ करीब 1.5 घंटे PMO में बिताए, और फिर उनके डिजिटल अपग्रेडेशन के ऊपर उनको किस तरह सुदृढ़ किया जा सकता है। क्योंकि अगर शायद हमारे पास आशा वर्कर्स नहीं होती तो जो डेथ टोल का नंबर होता है इंडियन पॉपुलेशन के प्रोटेक्स्ट में, इन कंपैरिजन टू द सेम टोल दैट वी हैड इन यूरोपियन कंट्रीज़, वो काफ़ी ज़्यादा होता। सो उनको ताकत देने के लिए ज़रूरी था कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करें, हेल्थ केयर डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर काम करें, जिसमें हेल्थ केयर के डेटा को कैसे एसेटाइज कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं, इसकी क्लैरिटी गवर्नमेंट लेके आए। 2025 में दिशा जैसे प्रोजेक्ट जो उसको एसेटाइज, मोनेटाइज और अब डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं, ये संभव हो पाएगा। जब हम बात करते हैं हेल्थ सर्विसेज की, एजुकेशन के क्षेत्र में किस प्रकार से जो रीजनेबल सर्विसेज होती हैं वो MSMEs दे रहे हैं, क्या आप कोई ऐसे एग्जांपल्स देखती हैं जहां पर MSMEs ने दोनों क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाने में कामयाबी हासिल की? जी, पहले के टाइम में होता था कि अगर किसी भी छोटे शहर में किसी मरीज़ को प्रॉब्लम होती थी तो वो डायरेक्टली बड़े जगह जाता था और अपना 1 महीना वेस्ट कर देता था। अब हमने ऐसे कर दिया है कि कुछ रेफरल सेंटर्स बन गए हैं जहाँ पर डिजिटलाइजेशन कैमराज हैं, और जैसे मैं आँखों की डॉक्टर हूँ, सो डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, थायराइड रिलेटेड चेंजेस, वो पिक्चर्स भी भेजते हैं अगर जनरल प्रैक्टिशनर्स, तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉर्ट आउट।
आपको सिर्फ छोटी छोटी, सबका टाइम बहुत आजकल अमूल्य है और उनको छोटी सी तकलीफ में आने की ज़रूरत नहीं होती है. All these digitalization and the referring centers have become a great help. हेल्थ की फील्ड में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि कुछ छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक ही कैटेगरी में उनको डाल दिया जाता है, फिर उसमें चैलेंजेस अलग अलग हो जाते हैं. आप पाते हैं इस तरह की दिक्कतें? आपको भी लगते हैं इस तरह के चैलेंजेस? मैं फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग में बात कर सकता हूँ. जी. फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं. चैलेंज इन सेंस कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए. हेल्थ मिनिस्ट्री जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री वहाँ के लोग आते हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो प्लांट को इंस्पेक्ट करते हैं और आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, जिसे GMP सर्टिफिकेशन बोला जाता है. और वो जो सर्टिफिकेशन होते हैं उनके काफ़ी नॉर्म्स टफ होते हैं और आपके जो प्लांट US में है चाहे इंडिया में है, दोनों का सेम क्लास हो जाती हैं, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. सेकंड थिंग चैलेंज आते हैं जो ह्यूमन ट्रायल, बायोइक्विवेलेंस जिसे बोला जाता है, और बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं. कुछ ऐसे गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए जो सेंटर गवर्नमेंट बनाए और वहाँ पे उनको सर्टिफिकेशन से अप्रूव किया जाए. अब ये जो फार्मास्यूटिकल है बहुत ही इन्वेस्टमेंट का फील्ड है, क्योंकि अगर आपको इंडिया में करना है तो आपके इन्वेस्टमेंट कम होगा तो चल सकता है, बट एक्सपोर्ट में तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए. हेल्थ केयर इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री. मतलब हेल्थ केयर को सेटअप करने के लिए आपको बहुत सारे फंड्स चाहिए होते हैं. आज की डेट में अगर आप एक मेट्रो सिटी में एक हॉस्पिटल सेटअप करना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट इज अबाउट 1 to 1.5 करोड़ पर बेड. ओह माय गॉड. अब इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसका जो पे बैक पीरियड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है. तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, जो वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी लोग जिनके आप बारे में सुनते हैं, वो इस चीज़ को फैक्टर करते हैं कि यार अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं 100 रुपये एक फिनटेक कंपनी में या एक ई-कॉमर्स कंपनी में लगाऊं या मैं एक अस्पताल में लगाऊं, मुझे ज़्यादा पैसा रिटर्न कब मिलेगा. सो ये कुछ चैलेंजेस, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जो आज की डेट में हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस फेस अक्रॉस इंडिया. हर इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड जब उन्होंने शुरू करा तो वो एक MSME से शुरू हुए. उस MSME को सपोर्ट करने के लिए हमें सारी चीज़ें करानी है कि वो कल को एक बड़ी कंपनी बने, हमारा और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब कर पाए. मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में वो सारी टेक्निक्स हों, वो सारी फैसिलिटीज़ हों, वो सारी दवाइयाँ हों जो बाहर के देशों में हों, कि हमारा पेशेंट बाहर जाने का ना सोचे. आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा. The nature of this conclave, and the title is Emerging Businesses. And in the emerging businesses domain, MSMEs, that is the micro, small and medium enterprises, they form 90% of the businesses and employ nearly 3/4 of workers in emerging markets and developing economies. And hence creating jobs and better jobs depend on them. The recent World Bank report, as we were discussing over the weekend, sir, highlights the gap challenges. How do you think we as a nation, and you as a policy maker who gives vision and options to the government of India, can achieve the goals that have been set by the government? And also, how can we harness the challenges being highlighted by that report? Your question today has 3 dimensions. You have sought to focus on the MSME. In India, which you correctly pointed out, 30% of India's GDP comes from the MSME. And out of the MSMEs category, particularly the micro sector constitutes 90% of this category of MSMEs. The problems that I can see, which that report has brought out in encapsulating in a sentence, is one, on the access to credit, assured credit. Right now it looks as though something like 25 lakh crores is still the remaining credit gap. The formalization of the sector itself is far from complete, and only 14% of the MSME sector has been formalized. Assured access and bridging the credit gap is one very big overarching issue. The second very big overarching issue is how to enhance its ability to upgrade its productivity and upgrade its skill.
and skill and productivity upgradation remains a challenge. Third, of course, is access to marketing and growing technology changes. And the last, of course, is its important contribution to the GDP of the country as a whole and enhance its contribution to India's export effort. All these are quite symmetric to India's own vision of 2047. And in that vision, the integral role of the MSME remains a very, very important critical component. Dr. Singh, always a pleasure speaking to you. Thank you so much for this fascinating conversation. नितिन जी, अपने पिता की विरासत को बहुत ही कामयाबी के साथ आपने आगे बढ़ाया और बढ़ाते चले जा रहे हैं। इनोवेशन के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है? किस तरह से छोटे सुधारों ने आपके व्यवसाय में बड़ा बदलाव लाया है? कई उदाहरण भी बताना चाहें और अपने सफ़र के बारे में भी बताएं। थैंक यू मैम। एज ए प्रयाग हम लोगों का हमेशा ये रहा है, जो चीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए एक लग्जरी है, उसको इंडिया में एक अफोर्डेबल बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए कि वो मासेस तक पहुंच सके। आज हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर एक जगह के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो हम लोगों ने पिछले 15 साल के अंदर अपनी जर्नी एक 70 प्रोडक्ट से आज 4,500 प्रोडक्ट तक लेके आए। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसके अंदर प्लास्टिक टैप्स हम लोगों ने ऐसा बनाया जो आज 10-10 साल तक ऐसी कंडीशंस जहाँ पे पानी बहुत ख़राब है, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी अच्छे से परफॉर्म करता है। नो मेंटेनेंस, ज़ीरो मेंटेनेंस है। सीपी फिटिंग हम लोग लेके आए, किचन सिंक्स लेके आए, पाइप एंड फिटिंग्स के अंदर अभी आने वाले टाइम में हम लोग जो पीपी साइलेंट पाइप या कंपोजिट पाइप्स हैं, जो कि आज यूरोप या यूएस के अंदर एक लग्जरी के अंदर या प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर आता है, हमारी कोशिश है कम से कम नहीं तो हम आज जो इंडिया में अवेलेबल इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनसे 30 to 40% चीपर पब्लिक ले लेके आएंगे। 35 साल हमारे सर्वोकोन को हो गए हैं और इस 35 साल की जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही है। और चूंकि हमने बिल्कुल शुरुआत से जीरो से स्टार्ट किया है कि ना तो हमारे पास कोई पैसे थे, ना ही कोई ऐसा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने इसको काम को शुरू किया 1990 में और बहुत 2-3 हज़ार रुपये से हमने अपना काम शुरू किया था। तो उस वक्त के दौर में एक बहुत बड़ी बात होती थी, तो धीरे धीरे हमने इसको आगे काम को बढ़ाया। पहले आप ये समझ लीजिए जो शुरुआत हमने की थी तो अपने जॉब वर्क से काम को स्टार्ट किया था और उसको आगे बढ़ाते हुए हमने 1995 में फिर इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया और 2005 में हमारी लिमिटेड कंपनी हुई। हमारे पास 4 सेगमेंट हैं सर्वोकोन के, तो मेनली तो सर्वोकोन जो है ना पावर सेक्टर में जाना जाता है। अभी हम लोग जो ट्रांसफार्मर्स बना रहे हैं तकरीबन 50 MVA तक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर्स हैं और वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में तकरीबन हमारे पास 80 मॉडल्स हैं जो रूरल एरियाज में सारे कैटर करते हैं, जहां वोल्टेज 50-60 भी आती हो या ज़्यादा 300 वोल्टेज आती हो, आप सब जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने एक बहुत छोटे से स्केल से अपनी इंडस्ट्री को शुरू किया। हम 2 भाई संस्थापक हैं इसके और 500 रुपये से हम लोगों ने ये बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रेडिंग स्टार्ट की ग्लास की, ट्रेडिंग से प्रोसेसिंग पे गए और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पे आए। हमारे पास उस टाइम पैसे की व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन कुछ सपोर्ट मिली और हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और आज हम लोग 5 प्लांट लगा के इंडिया में 2nd नंबर पर हैं कि 5 ग्लास मैन्युफैक्चर हैं, जिसमें से हम अकेले इंडियन हैं। गजब। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। किस तरह से आप नए सुधार या छोटे छोटे सुधारों के जरिए आगे बढ़ रहे हैं और क्या कितना फ़ायदेमंद वो साबित हो रहा है आपके लिए? आज के टाइम में आपका सबसे बड़ा गुरु टीचर एक कंज्यूमर है। हमारे पास एक मिड टर्म टीम है जो कंज्यूमर तक, डीलर्स तक, एंड यूजर्स तक पहुंचती है, समझती है प्रोडक्ट में क्या दिक्कत आ रही है, उनके सजेशंस क्या हैं, उस चीज़ को लेते हुए प्रोसेस के अंदर चेंजेस करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करते हैं। एक एक प्रोसेस को चेक करना, उसके अंदर टीम का इन्वॉल्वमेंट देखना, उन लोगों को कैसे आसानी करना है, प्रोसेस को कैसे बेटर करना है, वहाँ से कैसे चीज़ें या तो प्रोसेस से कुछ पैसा बचेगा या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दोनों चीज़ों को देखते हुए टीम बहुत अच्छे से काम करती है और कहीं ना कहीं हर साल के अंदर एक कोशिश रहती है 3 से 4% हम लोग प्रोसेस से कहीं ना कहीं कॉस्ट बचाते हैं और टीम की एफिशिएंसी और ईज टू वर्क उनको दिया जाता है।
आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जर्नी के बारे में बताया. Joining me now is Mr. Shikhar Gupta. He's the Senior Vice President of RRP Electronics. Mr. Gupta, welcome to NDTV and welcome to this conclave. Before I ask you anything, before I ask you about your company, before I ask you about anything else, what I want to know from you is how excited are you when you hear semiconductors, and what is happening in the world of semiconductors at this point of time? Semiconductors, like you started this topic in this forum, it's like the life of all the electronics. Like we as a company group, we are into defense as well. Even the chip to run that electronics is very important. We are following the Make in India vision of Narendra Modi, Prime Minister, and to get that chip, to make it indigenized, we got into this for manufacturing of semiconductors in India. And as of now, I'm very excited to talk about semiconductors to this forum. Why don't you tell us about your group of companies and what exactly inspired its journey into the semiconductor industry? Sure. So our journey started in 2018, where our defense establishment led by Mr. Rajendra Chodankar, RRP S4E. So we are into weapon sights, anything which sits on a weapon, be it for a day sight, be it a night sight. We are into long-range surveillance cameras, anything which sits on a border for border surveillance, about 10 kilometers, 20 kilometers. So when we were working into this field, we were doing indigenization. We did all the electronics, mechanical parts, the wirings, but the semiconductors got stuck, and it had the huge supply chains which disrupted our supply to the armed forces, the police forces. So that was the moment we wanted to enter into this space. Can you also give us a sense of any flagship products or projects that are currently under development in your company? So as of now, we are into all the legacy products, like we call QFN packages, we call BGA packages, and recently we had a tie-up with the company Deca Technologies based in USA. So what is unique about Deca Technologies? They are into wafer level advanced packaging. Okay. So these kind of chips are used in our iPhones. So their iPhones, all the latest IoT devices, the AI chips. So we are proud to say that very soon we'll be having those capabilities and manufacturing in India through our RPS4E. All right, Shikhar Gupta, thank you very much for sharing your views, and thank you for having this wonderful conversation. Thank you so much.